So, a very good evening to all of you. And because I'm doing it, and we are doing this session after a break, so I am super excited. बहुत happy हूँ मैं. So, good evening and a warm welcome to each one of you who's present now, and all the people who will be watching us later on YouTube. My name is Divya Shah, and I'm a journalist by profession. But Radio Diva just happened to me during COVID times. We wanted a platform to vent out, to be, meet each other at least virtually. And more than 2 years has passed. In fact, July 5th, we'll be completing our third year. And now it has transformed into a platform where experts from varied field, they come, they share their expertise, they share their wisdom and life lessons with us, helping us all to be a better version of ourselves. So I'll request each one of you be part of our growing Happy Go Lucky community. Follow us on Facebook and Insta by the name of Radio Diva, and do subscribe to the YouTube channel. We definitely need your support to grow. And yes, the topic today is very interesting. कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है. हम कितने लोग हैं जो कितना चिंता करते हैं, सुबह से शाम तक चिंता करते रहते हैं. कभी ना, जैसे हमारा वो सेकंड नेचर हो जाता है कि हर चीज की हमें चिंता करने की एक आदत सी हो जाती है. So today we have an awesome expert. He had done a session with us before, and it was very useful. He did a session on OCD with us. We'll share the link on the YouTube description. And he spoke so beautifully, and he came up with some great tips. And today again he is going to talk about this. He is a certified anxiety counselor. He is an NLP practitioner. He is a relationship counselor. He is a certified cognitive hypnotic coach. He is he is a mentor, and he's passionate about learning new things, how mind operates, and helping all his clients. So a warm welcome, Heminder sir. Thank you so much for coming on Radio Diva again. And it's really a privilege and an honor to have you, sir. So thank you so much, first of all, Divya ji, for conducting this meetings, which is really adding a lot of value to people around us. And so once again, formally we are meeting after a long time. So wishing you all a very happy and prosperous New Year. Since this is though we are on 24th, but till we are unable to complete this January. We are still in New Year mode only. So one thing is that before I start, I just wanted to know from all of you that hope everyone has set your goals. And if you have set your goals, start working on it on daily basis. Don't overburden yourself. Keep it like 1 or 2 tasks on daily basis. Do it, because even if you are waking up say morning 7 o'clock and you wanted to wake up say 6 o'clock, and it is very difficult for you, start with 15 minutes before, then 15 minutes before, and use this 5 second rule. So this 5 second, I'm just going off tempo before I start the topic. So 5 second is you count on your head 5, 4, 3, 2, 1, and once you say 1, you are out of your bed, right? So that is which really works. So I have learned this from one of the known counselor. So she shared that anything which you are unable to do it. So sometimes you want to start some work, and you are not getting right time to start. Just say 5, 4, 3, 2, 1, sit and start working. Even if you are doing it for 15 minutes, but continue doing it will set your ball rolling, right? That is one thing which is okay. So today we have decided to discuss on this particular topic, that how we can break this worry habit. So generally what happens now, we say that I don't want to worry, I don't want to spend my time in worrying, but actually subconsciously actually we enjoy worrying. Sometimes we don't have any issues in life, we try to create issues in life and then worry about it. Everything is going good, you see something, you get triggered, and then you start worrying about it. So if you see my life and whatever accolades which Divyaji shared about me that I have done, it is to do only with this one person. This is the role which these certifications are playing in my life. But what and how I'm going to share with all of you
that how we can break this worry habit is through my own life. So if you see this 99%, how I have been able to develop, it is because my childhood has always been in poverty, in financial issues. Hmm? Deaths were there. Hmm? Always there was a fights at home. Hmm? My self-image was very low. So whenever there is a fight, it was happening at my house. My father and mother used to fight like cats and dogs, right? And for days together, I never used to come out of home because thinking that what others must be thinking about. Because of which, I have started comparing myself with others. That those where the family is very harmonious and things like that, they are the what do you say? They have a very good luck. Like, they are very blessed. That was my thinking. And because of which, my own self image has gone down to rock bottom. I was not good in terms of communication. I never used to read books. I always used to read some Hindi books because in English समझ में नहीं आता था मेरे को. And though I have studied in English medium, but somewhere I was not able to gel with that kind of people whom I have come across because of my background. Then I myself have become alcoholic. My father was having that alcoholism. So all those challenges I have faced, and if you see, because of this, because of constantly going through challenges in life, facing all these issues in life, I become a patient of hypochondriasis. What is this hypochondriasis? This hypochondriasis is a problem wherein you check your health again and again. So हुआ ये कि जब से मैं बड़ा हुआ, ऑब्वियसली जो लाउड वॉइसेस मैंने सुने, जो झगड़े के वॉइसेस मैंने सुने, जो इश्यूज मैंने सुने, ये सुन सुन के इट हैज गॉन इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड. एंड बिकॉज इट हैज गॉन इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड, थोड़ा सा भी कहीं अगर जोर से आवाज हुई तो मेरे दिमाग में वो ही कनेक्ट होता था कि कहता आपका अगेन आई एम रीलिविंग दैट. करेक्ट. सो इसीलिए ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस से मैं बहुत दिन परेशान रहा. उसके बाद पता चला कि भैया मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम. उसके बाद मैंने दवाइयां खानी शुरू की. ऐसा हाल था मेरा कि आई वॉज अनेबल टू ट्रैवल इन ट्रेन. आई वॉज अनेबल टू ट्रैवल, फ्लाइट तो छोड़ दो आप, अनेबल टू ट्रैवल इन फोर व्हीलर, बिकॉज मुझे एक घबराहट सी होती थी. मुझे लगता था कि कहते हैं आपका मैं शायद ट्रैवल नहीं करूँ. सो जब ये मेडिकेशन स्टार्ट किया एंड आई बिकम एडिक्टेड टू दीज मेडिकेशंस, एंड देन आई हैव टेकन दिस मेडिकेशन फॉर अराउंड 4-5 years. एंड वो स्लीपिंग वाले जितने भी थे, तो few doctors have said that no, you have to leave this because it is going to create a lot of problems in future. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया that no, I have to stop this. अब आप मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं, my certificates which I have earned in say 2 to 3 years cannot replace these experiences. ठीक है. Certificates is something which allows me to display myself कि भैया मैंने ये किया है. But कहते हैं आपका whatever I am going to share with all of you today is nothing related to the books, nothing related to the certificates. It is rightly coming from my heart. Right? So this is what I wanted to share with all of you today. So if you go now, problem क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? सी बचपन से ना जब हम बड़े हुए तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम हमेशा बाहर वालों को ब्लेम करते थे, है ना. कि अगर अगर मेरे मैंने अगर कुछ मन्नत मांगा है और अगर वो पूरा नहीं होता तो भगवान आप जिम्मेदार हो. तो आपने पहले तो मन्नत रखा कि माँ मेरे घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा दो, और जब हो जाएगा तो कहते हैं मैं आऊंगा माथा टेकने के लिए वैष्णो देवी. अब बच्चा हो गया, अब आप जा रहे हो, रास्ते में कहते हैं आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ और बच्चा मर जाता है. आप क्या करोगे? आप उसी माँ के पास जिसके पास जा रहे हो आप उसको ब्लेम करने लगे कि व्हाट यू हैव डन, व्हाई यू हैव डन दिस. सो बचपन से हमको सिखाया गया है दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज बिकॉज ऑफ आउटसाइड. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब छोटे बच्चे गिर जाते थे नीचे और रोने लगते थे तो हम क्या करते थे? किसने मारा? इसने मारा, मारो. इस फ्लोर ने मारा, आपको मारो. सो बचपन से ये नहीं बताया हमने बच्चे को कि आप गिरे हो इसलिए आपको चोट लगी है.
संभल के चलो। ये हमने क्या बताया कि आपको चोट लगी है, आपको दर्द हो रहा है, आप मारो तो आपका खुद का दर्द कम हो जाएगा। एंड इसी तरह से ना हम किस तरह से सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, वी अवरसेल्फ डजंट। सो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एंड थ्रू दिस स्टोरी आई विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और कहाँ वर्क करना है। सी, अगर मैं आपको वरी के बारे में बता दूं तो ये मुश्किल से 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो तो आप गूगल में भी पता कर सकते हैं, उसमें उसके लिए मुझे यहाँ आके बताने की कोई जरूरत नहीं। बट व्हाट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ है, ये तो पहले पता चले, उसके बाद तो काम करना शुरू करेंगे। तो कितने लोगों ने ये फोटोग्राफ देखा? आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा, राइट? दिस इज अ पिक्चर ऑफ टाइटैनिक। सो टाइटैनिक में और हम में, हम दोनों के लाइफ में क्या क्या सिमिलैरिटी है? द टाइटैनिक वाज आल्सो ऑन अ जर्नी, एंड वी आर आल्सो ऑन अ जर्नी। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ दिस लाइफ, ट्राइंग टू अचीव समथिंग इन अवर लाइफ। सो हम सभी लोगों ने, अभी मैंने आपसे पूछा था कि आपने गोल रखा है ना? हाँ, रखा है। तो एक गोल है विच आई वांटेड टू अचीव, मे बी इन 1 year, 2 year, 5 year। सो इट इज अ लाइफ जर्नी विच इज गोइंग ऑन डेली बेसिस। बट आप देखो, ये जो शिप थी, ये साउथहैम्पटन यूके से चली थी ऑन 10th of April 1912, और जाना था इसको न्यूयॉर्क यूएस। बट हुआ क्या? सबको पता है, हम सभी लोगों ने मूवी भी देखी है। बीच में क्या होता है, आपका इट मेट विद एन एक्सीडेंट, जहां पे ये जाके डैश होता है, क्रैश होता है विद दैट आइसबर्ग। एंड 38,000 टन ऑफ वाटर उसके अंदर जाता है, शिप के अंदर जाता है, और शिप जो है वो सिंक कर जाती है। तो उसका जर्नी जो था, जिसके लिए वो निकला था, वो हो ही नहीं पाया। अब जब ये बहुत साल के बाद नेशनल ज्योग्राफिक वाले लोग जाते हैं, वो डेब्रिस को पूरा निकालते हैं सी के बेस से, और कोशिश करते हैं पता करने की कि हुआ क्या था, क्यों कहते हैं आपका ये इतनी जल्दी ब्रेक कर गया। तो उनको पता ये चला कि जनरली जब हम शिप को बनाते हैं ना, तो उसमें 3 मिलियन रिवेट्स लगे होते हैं। रिवेट्स मतलब कि स्क्रूज, मेटल के स्क्रू, ठीक है, 3 मिलियन। तो अगर आप देखोगे, आप अगर थोड़ा क्लोज लुक अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े ऐसे स्क्रूज दिखेंगे जो लगे हुए होते हैं। ये स्क्रूज पूरे शिप को एक साथ, मतलब इट इट होल्ड्स इट कंप्लीटली। तो अब स्क्रू लगाना मेटल का था, वो लगाना बड़ा आसान था नीचे बेस में। लेकिन जहां पे ये फोल्ड हो रहा था ना, जहां पे ये मोल्ड हो रहा था, जहां पे ऐसे उठ रहा था बोट का, वहां पे लगाना बड़ा मुश्किल था, जिसके लिए इन लोगों ने क्या किया था, हैंड क्राफ्टेड आयरन रिवेट्स बनाए थे। तो जब ये टकराया आइसबर्ग से, ये टूट गया, जो ये लोग बोल रहे हैं, और जो पानी है वो अंदर चले गई, और क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच इट tilted to 11 degrees and broken into pieces. That is what the data suggests, the data shows. अब इसमें जानने वाली बात यह है, जो हम सब बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम तो शिप में थी, सब स्टैंडर्ड मटेरियल था, जिसके कारण क्या होता है आपका, ये हिट झेल नहीं पाया। अब इससे हम अपने लाइफ को कैसे कनेक्ट करें? सो पहला चीज जो हमको सीखना है वो ये है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज आइसबर्ग्स इन अवर लाइफ। आइसबर्ग था ना, आइसबर्ग से तो जाके टकराया था। इस तरह के आइसबर्ग हमको भी मिलते हैं ऑन डेली बेसिस। ये आइसबर्ग्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। मैंने एक नया काम शुरू किया, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया, तुम कैसे कर पाओगे? अब आप क्या बोलोगे, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, छोड़ो। अब समझ लीजिए आपने, हाँ जी सर। नो, नो इश्यू सर, यू गो अच्छा, अहेड। वी कैन गो, किसी का राइट। म्यूट हो अच्छा, गया। है ना? सो आइडेंटिफाइंग दिस आइसबर्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, which is nothing but the external hindrances, influences which comes in our way, doesn't allow us to achieve what we want to achieve. तो होता क्या है, अब ये समझ लीजिए, आपने एक नया अब जैसे दिव्या जी हैं, आप कर रही हो, यू आर इनवाइटिंग पीपल टुगेदर, यू वांट दैट दैट पीपल कम टुगेदर, एंड हमारे जो सब्सक्रिप्शन बेस भी है, जो बड़े लाइक्स बड़े लोग जाने हैं, सो दैट वी कैन रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब आप समझ लिया, आपने 1 साल करा, अब कोई आके बोलेगा, अरे दिव्या ये सब छोड़ो, क्यों खाम खा का आप अच्छा खासा आपका जर्नलिज्म कर रही थी, ये फालतू का चीज क्या स्टार्ट कर, बंद करो।
कुछ नहीं होने वाला है इसमें। तब आपके दिमाग में डाउट आएगा, हाँ इतना समय तो बर्बाद कर दिया, छोड़ देते। So we have to identify these external influences, hindrances, which at times comes as an iceberg between we and our journey and our goal. And second is navigating through the water. अगर समझ लीजिए ये शिप को पता होता कि भैया आगे जो है वो एक आइसबर्ग है, बड़ा है, उसे टकराने से कुछ नुकसान हो सकता है, दे वुड हैव टिल्टेड इट टू अनदर डायरेक्शन। सो नेविगेशन बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। वाटर क्या है? वाटर आर नथिंग बट the daily mundane things which happens, the sea of like the sufferings what we see around. बट हमारे लाइफ में हमको समझ में आना चाहिए कि किससे बचना है, किसके पास जाना है। So at times we get some influences in life which takes us to a different direction altogether. सो मैंने डिटरमाइन किया कि कहते हैं आपका अब फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू पार्टी। अब मेरा फ्रेंड आता है ठीक सैटरडे को, जब मैंने सोचा है कि आई वांटेड टू डू क्रिएट सम न्यू पोस्ट्स एंड देन रीड सम न्यू जर्नल्स थिंग्स लाइक दैट, हुआ था नहीं नहीं भाई चलो आज पार्टी कर। तो दिमाग में आता है नहीं नहीं छोड़ो ना, आज जितने दिन से तो कर ही रहा हूँ, एक दिन अगर कहते हैं आपका नहीं करा तो क्या होगा, चलो जाते हैं। एंड दीज आर द डीरेलर्स। तो आप नेविगेट नहीं कर पाए। सो पहला चीज है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द आइसबर्ग्स इन अवर ओन लाइफ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। वी शुड नो हाउ टू नेविगेट इन दिस वाटर। मींस वी विल बी हैविंग सो मेनी रोड ब्लॉक्स, बट वी शुड नो वेयर टू गो। नेगेटिविटी से दूर जाना है। इन्फ्लुएंसेस विच इज टेकिंग यू टू अनदर डायरेक्शन, जो आपके गोल के अचीवमेंट की तरफ आपको हेल्प नहीं कर रहे, उनसे दूर जाना है। So always remember one thing, anything which is taking you away from your goal, avoid it. अब वो तो आपको पता है, ये आपको बैठ के करना है। तीसरा, बिल्डिंग सेल्फ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैटर थी इस पूरे स्टोरी में। अगर सिर्फ बहुत स्ट्रांग होती तो कोई भी आइसबर्ग ब्रेक नहीं करता। अब ये सिप कौन है? ये हम खुद सिप हैं, हम खुद टाइटैनिक सिप हैं, और हम अपने लाइफ में चले जा रहे हैं, और उसमें हमको बहुत सारे आइसबर्ग आएंगे। हमको वाटर जो कि चैलेंजिंग डीप डीप रहेगा उससे बचते हुए निकलना है। मतलब कि यू विल बी सराउंडेड बाय इन्फ्लुएंसेस, बट सी वाटर में सेल कर रहा है, बट वंस द वाटर कम्स गोज इनसाइड, दैट कंप्लीट बोट सिंक्स। सो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के बीच में रहते हुए उनसे बचते हुए सेल करना है। अब उसको आप कैसे करोगे? आप तभी करोगे जब आपका खुद का सेल्फ बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, आपका लाइफ स्टेट बहुत हाई है। अगर ये चीजें पे अगर आपने वर्क नहीं करा, अब सुबह सुबह लोग क्या करते हैं? सबसे पहले न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं या फिर न्यूज चैनल उठा लेते हैं। अगर आप उसमें देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? कहीं अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा है, हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। Now what you are doing is you are again deep, diving. You are as if you are making a hole in your boat. So हमको ये समझने वाली बात है that problem is not outside. अब किसको ब्लेम करोगे? वाटर को ब्लेम करोगे, आइसबर्ग को ब्लेम करोगे, या फिर शिप को ब्लेम करोगे? यस, शिप अगर स्ट्रांग होता तो सेल कर पाता। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, एंड with this particular intention we have to move ahead from this in this session today, that वरी अगर है आपके लाइफ में, तो वरी को निकालने के लिए किसको काम करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप कोई बुक पढ़ लेते हो, मोटिवेशनल बुक, और मेरा रिकॉर्डिंग 2 बार सुन लेते हो, तो इससे कुछ भला नहीं होने वाला, बिकॉज एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट ओनरशिप lies at us, and it is we who have to take the action. No one is going to take an action on behalf of कितने दिन से यही पहने जा रहा है, तेरे को मुझे मतलब नहीं चेंज आप करने। सो आप म्यूट कर सकते हो। या ओके, लेट्स मूव अहेड। सो जो वरिंग है ना, ये है अ सेल्फ टॉक एक्टिविटी। सेल्फ टॉक एक्टिविटी में हमेशा जो है ना, हमारा दिमाग हमसे बात करता रहता है। हम जो बोलते हैं ना, हमारा थॉट्स जो है वो हमसे बात करते रहते हैं, और ये बात करते हैं, आप चुप कराने की कोशिश करते हो, रुकते ही नहीं, और आपको कहां कहां लेकर जाते हैं। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। मेरी बेटी स्कूल गई, 4 बजे बस आ जाती है, आज 4:15 हो गया, नहीं आई, क्या थॉट आएगा?
आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा कि बस खराब हो गई होगी, या शायद आज छुट्टी देर से हुई होगी, क्या हो गया, क्यों नहीं आई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं ये, ऑल नेगेटिव थिंग्स विल जस्ट पोर इनसाइड आवर लाइफ. So this is how we have, created our life in that way. So वरिंग एक सेल्फ टॉक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को हमको रोकना है. दैट इज द मेन इंटेंशन व्हाई वी हैव केम टुडे इन दिस सेशन. बट हाउ वी कैन डू दैट, वो समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर अनेबल टू कंट्रोल अवर थॉट्स. व्हाई वी आर अनेबल टू कंट्रोल अवर थॉट्स. सो उसके लिए पहले ये समझ लीजिए, ये जो साइकिल है ना, ये समझ लीजिए. पहला जो है वो है ट्रिगर. तो ट्रिगर क्या है इस सिचुएशन में, दैट 4:15 हो गया है, बेटी घर नहीं आई है. दैट इज अ ट्रिगर. So when I have seen that watch 4:15, my God, immediately I have engaged in that thought. So समझ लीजिए दिव्या जी के घर पे एक गेस्ट आया. अब वो गेस्ट आया है, बैठा है. अब दिव्या जी पूछ ही नहीं रही है इसको, वो अपना कुछ खाना बना रही है, कुछ कर रही है. वो बैठा हुआ है कि कोई तो आएगा चाय पूछेगा, कोई तो आएगा एक दो बिस्किट पूछेगा, कोई तो आएगा बात करेगा. कोई बात ही नहीं कर रहा है, पूछ ही नहीं रहा है. वो बैठा है, बैठा आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा. सब अपने अपने काम में लगे, एज इफ आई एम इनविजिबल. व्हाट दिस गेस्ट विल डू, टेल मी, क्या करेगा गेस्ट, क्या करेगा? वो उठ के चला जाएगा. सो कर रहे बेसिकली if we don't pay attention to a thought, so it's like entertaining a guest. if we if we don't entertain a guest, it will go. So in our mind, every thought which comes, we should pick and choose what we want to hang on to and what we want to let go of. And any thought which is of a worry, we should just let go of. It's something like ना, आपने एक पेड़ लगाया है, उसके आसपास कितने सारे गड़बड़ वाले पेड़ आ जाते हैं, वो घास आ जाता है, वीड्स आ जाते हैं. तो जो मेन पेड़ है वो अफेक्ट नहीं हो जाए, आप बाकी के थॉट्स हटा, बाकी के वो पेड़ हटा प्लांट्स को हटा देते हो. यू क्लीन इट. So the same way our brain has to be kept. So I think सेशन तो हो गया कंप्लीट. दिव्या जी ने बता ही दिया अभी इम्पोर्टेंट सारे. नहीं. So basically, what happens? Can I say something, दिव्या? हाँ जी, प्लीज. हेमेंद्र जी, एक चीज और है. अगर वरी है, किसी को आदत है वरी करने की कि बेटी घर नहीं पहुंची है, वरी तो होगी. So instead of sitting and going into negative thoughts, why don't we go out and check what happened? कि क्यों बस कहाँ रुक गई है, क्या हो गया है. या तो स्कूल में फोन करें, या बस ड्राइवर को फोन करें, या आगे बढ़ के जाएं कि कहीं बस में पंचर तो नहीं हो गया. हम नेगेटिव थॉट्स नहीं लाके कुछ पॉजिटिव एक्शन करें. तो ये जो पॉइंट है ना, तो वो मेरा एक्शन मुझे हेल्प करेगा ना कि मैं वरी नहीं करूं. आई एम डूइंग समथिंग. कभी कभी आप एक्शन करते हो, समझ लीजिए आपने कॉल किया, बट स्कूल में किसी ने फोन ही नहीं उठाया. तो बस का ड्राइवर है आजकल, तो बस ड्राइवर फोन उठा, हमें रूट मालूम है तो हम अपनी गाड़ी लेके उस रूट पे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं. करेक्ट. सो ये जो एक्शंस की आप बात कर रहे हो ना, ये हम अभी देखेंगे आने वाले समय में, दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी कैन डू सो दैट वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज थॉट्स. सो जैसा मैंने अभी बताया कि अगर एक गेस्ट आया है मेरे घर पे, अगर मैं उसको चाय आओ भगत कर रहा हूँ, तो वो क्या है ना, वो वहीं जम जाएगा, अतिथि फिर कभी नहीं जाएगा. So we have to understand that whatever thoughts comes in our mind, if we are engaging with those thoughts, then what will happen? So it's something like whenever you put your energy to, it grows. Whether it's good or bad, जिसमें आप एनर्जी डालोगे वो बढ़ेगा, जिसमें आप एनर्जी नहीं डालोगे अपनी, वो कम हो जाएगा. So we need to decide where we should be actually investing in. जब हमें पता है कि ये हमारे बुरे के लिए है, ये हमें खींच रहा है अपनी तरफ, और हम चिंता किए जा रहे हैं, and we know it's not good for us, we should take action and stop it right away. Correct. But ये सबको पता है, but करना बड़ा मुश्किल है. See, we all know. सारा कुछ प्रैक्टिस से हो सकता है. मैं बहुत चिंता करती थी, but I think when we start practicing, it really helps. स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकता है, बट इवेंचुअली हैबिट हो जाती है. करेक्ट. सो व्हेन आई स्टार्ट identifying my thoughts, then the thoughts loses its capacity or control.
ठीक है ना। सो अगर आप समझ लो, कभी कभी कहते हैं, आपने सुना होगा कि जो हॉरर मूवीज होते हैं ना, उसमें कहते हैं आपका एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें बोलते हैं कि ना आपको रात में वो शमशान के बीच से होते हुए जाना है, और आपको बहुत सारी आवाजें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट कहते हैं ना उसको सुनना नहीं है क्योंकि वो सारे सच नहीं है। ये अवेयरनेस जो है, ये जो थॉट्स आ रहे हैं हमारे दिमाग में, ये उसी तरह के भूत हैं जो हमारे कान में कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हेन आई एंगेज विद दिस थॉट्स, देन हम उसी में फंस जाते हैं, एंड वी स्टार्ट वरिंग अबाउट थिंग्स। वरी का मतलब क्या है? आई एम एंटिसिपेटिंग समथिंग में हैपन इन फ्यूचर विच हैज नॉट हैपन, and I create a movie in my mind, a horror movie in my mind. I enjoyed it. कितने लोगों को डर लगता है हॉरर मूवी देखने, बट एक्साइटमेंट भी होता है ना, मजा भी आता है कि नहीं? वी इंजॉय ऑल्सो। सो रात में आप अकेले हो, आपको डर भी लग रहा है, लेकिन आप देखना भी चाहते हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं उसमें मजा आता है, एक्साइटमेंट होता है, डोपामिन रिलीज होता है ना, and dopamine excites you, and that is what is happening here. So what we have to do is we have to first understand what are these triggers in life. ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? जैसे सीइंग सर्टेन इमेज। तो जैसे आपने कुछ एक इमेज देखा और आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ गए, आप आ रहे हो गाड़ी में और आपने एक एक्सीडेंट देख लिया, अब आप क्या सोचोगे? ये कहीं मेरे साथ हो जाता तो, मेरे फैमिली मेंबर के साथ हो जाता तो, अगर कहते हैं आपका, एंड देन व्हाट विल हैपन ना, दीज इमेजेस विल गो एंड सिट इन योर हेड समवेयर। टुमारो समथिंग हैपेंस ना, कोई नहीं आया तो यू विल कोरिलेट विद दैट, कहीं वैसा तो कुछ नहीं हो गया। दिस विल गो इन योर माइंड एंड सिट देयर हियरिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन। मतलब आप कभी कहते हैं आपका, जैसे किसी ने कुछ एक आपको बैड इंफॉर्मेशन दे दिया, या आप उससे इतना डर जाते हो, एंड दीज इंफॉर्मेशन विच यू आर हियरिंग, लाइक यू नो, कोरोना के इंफॉर्मेशन हम बहुत सुन रहे थे ना, इतना केसेस बढ़ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, तो हुआ क्या? उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आप तो घर पे बैठे हो, आपको क्या हुआ? आपको तो कुछ भी नहीं था, बट क्या होता है, यू स्टार्ट You know, थिंकिंग ऑन दोस। हाँ। this is Heminder sir, second wave में इतना ज्यादा ऑक्सीजन की कमी. So what happens ना कि when we are worrying, our breaths become shorter. We need more oxygen and our palpitation increases. So many people, I mean, I might be wrong, I'm not an expert, but more than corona, I think worry and those, you know, palpitations and those, you know, tension around, I somehow feel affected people much more than COVID. यस, नो, इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज होता ये था ना कि हम सोचते हैं उस सिचुएशंस के बारे में, और हम फियर करने लगते हैं कि इफ इट हैपेंस विद मी देन व्हाट विल हैपन, एंड दैट विल टेक योर प्रेजेंट मोमेंट अवे। यू विल लूज योर प्रेजेंट मोमेंट थिंकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन टुमारो। तो टुमारो भी हाथ में नहीं आता, टुडे भी हाथ से जाता है। The third one is being put in certain situation. अब जैसे ना, मेरे बॉस बहुत बार कॉल करके मुझे बोलते थे, यार यू आर गुड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कैन यू टेक अ सेशन ऑन दिस? यार मेरे को मतलब दूसरे कलीग्स हैं उनको बोल दो, क्यों अननेसेसरी का मेरे को हेडेक नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर नाउ, आई हैव टू पुट माय हेड ऑन दैट, आई विल स्टार्ट हैविंग दैट palpitation and fear in terms of कि प्रेजेंट करना है। तो we try to avoid certain situations। किसी को हॉस्पिटल में जाने में डर लगता है कि अगर हॉस्पिटल में गए तो पता नहीं वहां से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, सो देन क्या होता है ना, यू डोंट वांट टू गो। सो वाइट कॉलर फियर कुछ है ना, वो है ना, वो डॉक्टर को देखने से डर लगता है, यू डोंट वांट टू फेस दोस सिचुएशंस। नाउ these triggers you cannot control, because I cannot remove icebergs from my life, I cannot remove water from my life, these are there, but what I can do is I can equip myself. So what I would suggest all of you to do is write down your what if thoughts। means अगर आपके, हम सबके लाइफ में ना 3-4 चीजें हैं, एक हेल्थ, दूसरा जॉब, तीसरा फाइनेंस, चौथा रिलेशनशिप, और पांचवा स्पिरिचुअल, राइट? ये 4-5 एस्पेक्ट्स के चारों तरफ ही हमारा लाइफ घूमता रहता है। These are all like planets and we are like sun, ठीक है ना? अब आपको ये करना है
that for each and every aspect you have to write what if thoughts, like health में अगर मुझे कैंसर हो जाएगा तो फिर उसके बाद नीचे आएगा, देन क्या कहते हैं आपका, हाउ माय वाइफ विल सर्वाइव, how she will get money. Then third one is what will happen to my child. Fourth is that I don't have any saving. Fifth thing is कि कहते हैं आपका, if there will be no earning, how the daily mundane things will happen. See how the chain of thoughts is coming. But Haji. So what had happened during COVID now, this is a practice that was given by one of the counselors on Radio Diva itself. He I don't remember who gave it, but he said, or she said categorically ki write all your worries. If something happens to you, this is the password, this is, यानी सब कुछ बता दो कि आप अगर कुछ आपको हो तो आपकी फैमिली आपको पता है कि will manage. I know. No, ये point बहुत सारे लोगों ने भी करा था, because if tomorrow I get hospitalized and they don't know, like all the passwords, my signature and all those things, if something God forbid happens, then what will what I'll do. So ये जो what if thoughts जो है ना, ये आपको लिखना है. Generally I help people to write it when I am taking session, but since we have a limitation of time, you can do that once the session is over. So ये आज ही करना, कल मत करना, कल करोगे तो कोई फायदा नहीं. So you have to do it today. Write it down, all the 4 and 5 aspects of life, and what are the what if thoughts which is coming in your mind, which is leading you to worry. And then we have to understand this particular aspect. Let me just. So this is the question which always comes, whether the worry is good or bad. है ना? अब जैसे अगर मान लीजिए मेरे को worry करके awareness आ रहा है, तो then it is good. जैसे मेरा सेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट वीक, और मुझे हमेशा वरी होता है कि मैं बोलते बोलते भूल गई तो, या मैं गिर गई तो क्या होगा. तो वहां पे आपको पूछना तो क्या होगा. अब जैसे ना कुछ लोगों के, हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें कुछ बंदों को फियर था स्टेज में जाके लोगों को एड्रेस करने का. तो उनके दिमाग में क्या थॉट आता ना, अगर किसी ने चप्पल फेंका तो, अगर किसी ने टमाटर फेंका तो. मुझे ये चीज भी है. मुझे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले भी सेशन ले लिया और हर बार बहुत अच्छा होता है. आज भी रीटा मैम ने, जो हमारी कनेक्ट करती हैं, वो उन्होंने कहा कि दिव्या आई टोटली ट्रस्ट यू. पर ये एक वरी रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे अंडे वंडे मारे तो सो उसमें आप देखो, उसमें ना सोचने का तरीका है. जैसे पहले अंडे कौन लेकर आता है आज के डेट में अपने जेब में, ठीक है. सेकेंड थिंग, अंडे लाएगा भी तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो है ना, देखेगा अंडे ला रहे कि नहीं ला रहे. चप्पल, अगर चप्पल फेंकेगा कोई तो चलो अच्छा है, अगर दोनों चप्पल फेंकेगा तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चप्पल हो जाएंगे. I'll be able to use it. टमाटर कौन फेंकता है आज के डेट में, कौन लाता है जेब में टमाटर भर के. So when you start asking these questions ना, it will your thoughts will lose its touch. हाँ जी, है ना, छोड़ देगा वो, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं. जैसे अगर बोले if I suffer from cancer, then and how do you say that, what is the proof. आई थिंक बीमारी की चिंता बहुत लोगों को होती है कि मेरे को ये एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि कैसे हट सकता है. बिकॉज मैंने कितने लोगों से सुना है, मेरी मम्मी को भी था, बहुत ज्यादा ना मेरी तबीयत खराब होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा. ये लेडीज में ये वाली चिंता बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे ना पहले तो आप ये पूछ लीजिए कि जो बीमार होते हैं वापस ठीक नहीं होते क्या, या सारे के सारे बीमार होते हैं मर ही जाते हैं. So when you start asking this question, challenging their own beliefs, it will lead to the beliefs will break down one by one. तो जैसे अगर किसी ने बोला ना कि मैं ना बिल्कुल भी अच्छा स्पीकर नहीं हूं, एंड वो तुमको कैसे पता है. नहीं मेरे को ना कुछ लोगों ने बोला था. कितने लोगों ने बोला था? 10 लोगों ने बोला था. ओके, कितने लोगों की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में? इतने. जब वो सारे लोग बोल देंगे तब इस बात पे बिलीव करना कि तुम अच्छा स्पीकर नहीं हो. सो देन योर माइंड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. सो अगर जैसे आपने बोला ना कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगी, अगर मेरा डेथ हो जाएगा तो कहते हैं आपका बच्चों का क्या होगा. ओके,
तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि कहते हैं आपका बगैर मदर के भी रहते हैं, बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर पाते हैं या मर ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। और इस बात का क्या गारंटी कि आप बीमार हो जाओगे तो आप मर ही जाओगे? और इस बात का क्या गारंटी है कि कितने लोगों को जो भी कैंसर हुआ है या जो भी ऐसे लाइलाज बीमारियां हुई है, दे हैव बीन एबल टू रीगेन बैक? So when you start asking those questions, now you will lose that grip on your thoughts. So the question is that whether this worry is good or bad. So पहला होता क्या है ना, there are something called as controlled worry. Controlled worry का मतलब क्या होता है? जैसे मैं निकला रात में गड्डी लेके, हाँ, और मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, अब ये भाग रहा है और मैं कहते साइकिल में जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा उस समय? साइकिल रोक के उसको बुलाऊंगा तो नहीं, आओ भैया काट लो मुझे, है ना? तो आई विल ट्राई टू पैडल माई साइकिल वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट, ताकि मैं निकल जाऊं उस गली से जहां पे मेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने फोटो भी लगा दिया ताकि यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एंड कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट। होता ये है कि व्हेनेवर एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशंस कम्स इन योर लाइफ, द कंप्लीट, कभी कभी आपने सुना है, अरे आपको मालूम है डर के मारे ना उसका चेहरा पीला पड़ गया? सुना है कभी? चेहरा पीला पड़ने का मतलब क्या है मालूम है? whenever say you have a threat, the complete body का जो blood flow है ना, it goes to that area. So like why? Because that particular muscles has to work very fast. तो अब ये मेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है, अब मेरे पूरे जो बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है, it will go towards my legs, or so that it is giving that power to my leg muscles to run. आपने कभी कभी देखा ना कि एक छोटा बच्चा है, वो कुछ ऐसे सिचुएशन में अपने फादर को गोद में उठा के बाहर निकालता है, जो कभी करना मुश्किल, मतलब नामुमकिन है बचाने के लिए, लाइफ बचाने के लिए। क्यों? बिकॉज द कंप्लीट एनर्जी हैज गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। बट अब सोचो कुत्ता तो चला गया, लेकिन ब्लड का फ्लो अभी भी हो रहा है लेग में, तो क्या होगा? यू विल स्टार्ट एकिंग, विल स्टार्ट पेनिंग। अगर मान लीजिए आप हाथ को ऐसे उठा के रखते हो थोड़ी देर तक, तो ये ना ज्यादा भारी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसको उठा के रखते हो 1 घंटे तक ना, तो यही हाथ 1 किलो का लगेगा, है ना? वो किसका, सनी देओल का हाथ हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट कंट्रोल्ड वरी इज गुड, which is there for some time, and in this situation what happens is dopamine is being released. डोपामिन का काम क्या होता है ना, वो हमारे एक्साइटमेंट को, हमारे मोटर फंक्शंस को बढ़ा देता है। बट प्रॉब्लम ये है, जो मैंने अभी बताया था कि योर ब्लड सर्कुलेशन इज कीप गोइंग, आपके दिमाग में जो है वो कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है। अब आप क्या करोगे? डोपामिन को पता नहीं है ना सच में भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, ब्रेन को ये लगता है कि अभी भी यू आर इन थ्रेट, एंड देन द डोपामिन विल बी रिलीज्ड एंड इट विल कीप ऑन रिलीजिंग रिलीजिंग रिलीजिंग। अभी क्या होगा? You will become addicted to this dopamine. Why? Because it excites you, it gives you that kick. So होगा क्या? Because वो addiction हो गया है, now your brain will show you different movies so that the dopamine gets released. And then you will become addicted, and that is called as chronic worry. तो क्रॉनिक वरी क्या है? जब ये कंट्रोल्ड वरी अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा, अब आप बिना मतलब का दिन भर बैठ के बस वरी ही कर रहे हो। अब जैसे कल ऑफिस जाना है, आप वरी करो पता नहीं कल क्या होगा, कल कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं हुआ तो कल भी कुछ नहीं होगा, है ना? सो ऐसे पहले सिचुएशंस कितने आए थे, वी हैव ओवरकम ऑल दो सिचुएशंस इन आवर लाइफ, राइट? सो दिस क्रॉनिक वरी लीड्स टू GAD, generalized anxiety disorder. Now what is this anxiety disorder? अब आपने एक बार वरी किया, 2 बार वरी किया, ये सारे आपके रिसेप्टर्स जो हैं ब्रेन में बन गए, बिकॉज डोपामिन गोज एंड अटैचेस विद द रिसेप्टर्स, करेक्ट ना? अब क्या हो गया, डोपामिन जब बढ़ रहा है ज्यादा, तो उसके लिए उतने ज्यादा रिसेप्टर्स चाहिए। अब ज्यादा रिसेप्टर्स अगर हो गए तो आपको उतना वैसा सोचना पड़ेगा, सो दैट ऑल दोज डोपामिन इज गोइंग एंड गेटिंग अटैच्ड टू दोज रिसेप्टर्स। उसका काम हो गया ना, तो आपने काम दे दिया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? वरी का मतलब है विच इज हैपनिंग इन माय माइंड। व्हेनेवर एनीथिंग रिलेटेड टू थॉट्स, वरी वहां पे आती है, प्लस स्ट्रेस।
स्ट्रेस क्या होता है ना, जब आप सोचते हो कुछ नेगेटिव, दैट विल हैव एन इम्प्लीकेशन ऑन योर बॉडी। मतलब आप देखो, आपके हाथों से पसीने आने लग जाएंगे, आप सेक सेक करोगे, आपके गला सूखने लगेगा। आप देख लो, अगर कभी सेशन लेने से पहले आपको होगा, कभी भी अगर तो ये स्ट्रेस जो आपकी बॉडी बॉडी में जो दिखता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, और जो दिमाग में होता है उसको हम बोलते हैं वरी, और जब इस दोनों को मिला देते हैं इट इज कॉल्ड एज एंजाइटी। एंजाइटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ worry and stress. So if we are not addressing this worry, it will lead to stress, it will lead to generalized anxiety disorder, and we don't want to, जैसे मैंने वो डिप्रेशन का पिल लिया था, आई थिंक आप लोगों को नहीं लेना है, तो अगर नहीं लेना है तो you have to start working on this from now onwards. And how we can work, let's try to understand. So quickly we will try to understand the functions of worry. So ये worry काम कैसे करता है? तो एक तो हमने समझ लिया कि डोपामीन है। तो क्या हो रहा है डोपामीन से, ये रिलीज हो रहा है और हमको एक्साइटमेंट की फीलिंग हो रही है। बिकॉज आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई वांट टू फील दैट अगेन। सो हम हॉरर मूवी क्यों देखते हैं बार बार? क्योंकि हमको डर लगता है, फिर भी हम देखते हैं क्योंकि हम एक्साइटेड फील करते हैं। हम बार बार मोटिवेशनल टॉक क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट है, मजा है। लाइफ में मजा नहीं है तो, क्योंकि रोज काम करने में मजा नहीं है, डोपामिन नहीं है, सो देन क्या होता है, यू फील कि यार छोड़ो। रोज एक्सरसाइज करने में मजा नहीं है, बिकॉज डोपामिन विल नॉट गेट रिलीज, बट फ्यू पीपल आर एबल टू डू इट। व्हाई? बिकॉज उसमें उसको एक्साइटमेंट मिलता है, बिकॉज ऑफ विच द डोपामिन गेट्स रिलीज, विच pushes them to take an action. Second thing is your magical thinking. You know what is magical thinking? Magical thinking is, अब तक जितने भी आप लोगों ने वरी किया है, जो भी आपने वरी किया, क्या वो हो गया? कभी भी नहीं होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो, मतलब विच वॉज एक्चुअली एविडेंट कि होना ही वाला था, आपने सोचा और वो हो गया, राइट? सो मैजिकल थिंकिंग क्या होता है? हमारा ब्रेन कनेक्शंस बनाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसा है? सुबह उठने के बाद कोई आपको बोलता है जाओ ब्रश करो, नहीं बोलता है ना कोई भी। आप ऑटोमेटिकली उठते हो, you want to brush your teeth because you want to feel fresh, so you go there, right? And then अगर आपको आदत है चाय पीने की, तो then you take your tea and then you start having tea. So generally I do that, and then I read book and then I take my tea. So होता ये है कि whenever you have worried about something and it has not happened, your mind made a connection that if you worry, nothing wrong will happen. एंड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बैठा होता है कि वरी करोगे ना। वरी हम क्यों करते? कभी कभी वरी करेंगे तो शायद वो नहीं होगा। ये सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में रहता है कि इफ आई एम वरिंग, that particular thing which I am worrying for will never happen, because that neuroplasticity, the neuro connections has been formed. इसलिए हम बोलते हैं ना, कभी कभी brush your teeth from your left hand. What you are doing? You are making new neurons. तो न्यूरॉन्स कैसा है आपको मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है। समझ लीजिए आपने जो फील्ड्स जो होता है ना, फार्म फील्ड्स, उसमें आप देखो दे मेक दैट पैसेज, तो वंस दे पुट अ वाटर ना, दैट वाटर विल गो ऑटोमेटिकली इनटू दैट पैसेज। You don't have to. Why they make that passage? So that the water goes, it gives a direction to that water that it should reach to this particular part of that field. इसी तरह से हमारे दिमाग में जो कनेक्शंस बन जाते हैं, that worry करना है, and then nothing is happening wrong. So you will automatically worry with that connection that nothing wrong will happen, which will give you an internal reward. Worry से हमको ना reward होता है, अंदर ही अंदर हम we feel good about worrying again and again about something. And then the third one is denial. सो ऑस्ट्रिच को आपने देखा है ना, वो क्या करता है ना, जब बहुत आंधी और तूफान चलता है तो वो अपने सर को जमीन के अंदर डालता है और सोचता है कि कहते हैं आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी डू इज एट टाइम्स, जैसे मेरे अंदर में होता था, एंड आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मेरे फादर का एज है 78, ठीक है, और कभी कभी ना मेरे को डर लगता है कि अगर मेरे फादर को कुछ हो गया तो, अगर उनका डेथ हो गया तो फिर कैसे करूंगा मैं, कैसे चलेगा, बिकॉज इज अ ग्रेट सपोर्ट फंक्शन फॉर मी। सो ये थॉट्स आते रहते हैं और हम क्या करते हैं, नहीं उनको कुछ भी नहीं होगा, he will live 100-200 years. So this is called as denial. जैसे
मेरे हस्बैंड का ना लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नहीं नहीं नहीं, he is not like that, he will never do that. I am telling this to myself again and again and not accepting this fact, because accepting this fact makes you more worrisome. आपको और वरी करवाता है ना जब आप उसको सोचते हो, तो आप उसको अवॉइड कर दो, डिनाई कर दो, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा होगा ही नहीं। आप देखो आपके खुद के लाइफ में अपने ऐसे कितने रूल्स बना के रखे हैं wherein you deny accepting certain facts. So अगर मैं ये बोलूं अपने आप को, a person who has taken a birth has to die, life is eternal, then what will happen? My focus will change, then I will not fear, then I'll say yes, everyone has to die, मेरे को भी तो डाई करना है, कल आपको भी डाई करना है, everyone has to go. Now I have to prepare myself to face those challenges and everyone has to go through that. So this denial will keep you always closer to worry. Hope you are able to get the point. I wanted to make it. So these are the things which is not allowing us to come out of that worry. And quickly now we will come that how we can remove this worry from our life. And these are the things which I have learned. So first is that you have to write what if. So all the different phases, aspects which I have shared, write that what if, and then challenge those what ifs. So what? So what? And then you will not be left with any answers. Third one is self-awareness, which I am going to take it now. And the fourth one is release emotions. So self-awareness मैं दूसरे slide में लूंगा. Release emotions में कैसा है ना? Any worry which is there in your mind, write it down in a piece of paper and burn it. When you do that, your जो हम journal लिखते थे या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? Because whatever emotions which is there within us, so generally होता क्या ना, there is something called as, I will quickly touch on this particular point, it is called as breakdown cycle. Breakdown cycle में होता ये है कि एक लड़की है, उसका शादी होता है, ठीक है, शादी हुआ, उसके घर में उसके पेरेंट्स बोलते हैं देखो अब तुम नए घर में जा रही हो, ससुराल में जा रही हो, पहले 6 महीने मुंह बंद करके रखना, किसी को कुछ मत बोलना, बस सुनना, ठीक है। अब लड़की बोलती ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी, वो जाती है। अब उसके दिमाग में क्या रूल बना है, 6 महीने तक चुप रहना है, तो चुप रहती है। अब हस्बैंड जो है वो आराम से रात में आता है, पेरेंट्स के टाइम साथ ही टाइम स्पेंड करता है, इसको कभी पूछता ही नहीं है। अब इसके दिमाग में क्या रूल है कि मेरे को कुछ बोलना नहीं है। इन लॉज बोल रहे हैं सुबह सुबह चाय क्यों नहीं बनाई, देखो अभी 9 बज रहा है, 9 बजे तक सो के उठने का टाइम है क्या? अब वो रात के 12 बजे तक काम की थी वो कोई नहीं जानता है, बट क्या बोलेंगे सुबह सुबह उठने का था ना, हमको बना के चाय देना था। These are all things which has happened with me. That is what I am sharing. It is not ऐसा कुछ कहीं पढ़ा नहीं है मैंने। So when you face all those situations, what will happen? Because that lady is having a story in her mind, rule in her mind that मेरे को बोला गया है not to react. So I will not react. अभी होता क्या है ना, whenever any situation comes, either we want to run from it or we want to face it, fight or flight. ये दो सबको पता है ना, या तो हम लड़ना चाहते हैं या फिर हम भागना चाहते हैं। लेकिन एक भालू का कहानी आप लोगों को पता है ना, जिसमें वो भालू आता है और ये बंदा ना डेथ, जैसे उसको जैसे वो मर गया है वो वैसा दिखाता है अपने आप को, सांस भी नहीं लेता, लेटा रहता है। तो भालू आता है, उसको सुनता है, देखता है, अरे यार कोई तो मर गया है, तो चला जाता है। दैट इज व्हाट वी डू। सो बिकॉज दिस लेडी क्रिएटेड दैट रूल इन हर ओन माइंड दैट आई कैन नॉट रन, वो भी घर छोड़ के जा नहीं सकती है, 6 महीने का टाइम बोल के आई। और दूसरा चीज वो कुछ बोल भी नहीं सकती है, लड़ भी नहीं सकती, लड़ेगी तो फिर पंगा हो जाएगा। तो ना तो फ्लाइट कर सकती है ना फाइट कर सकती है। अब वो क्या करेगी, प्ले डेड करेगी। प्लेइंग डेड मींस शी विल नॉट रिएक्ट। बट हमेशा याद रखिए, एनी इमोशंस व्हिच इज कमिंग, इफ यू आर नॉट रिलीजिंग इट बाय ईदर फाइटिंग और फ्लाइटिंग, इट विल बी स्टोर्ड इन योर बॉडी। तो रिलीज तो करना है ना कहीं पर। अब वो इमोशंस जब अंदर स्टोर होते जाएंगे तो कंधे में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, ये जगह जगह में उसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। और जब ये एक पीक तक आएगा तो वो बर्स्ट करेगा। वो हुआ होगा, मतलब क्या कहते हैं आपका, एक दिन जब आया हस्बैंड आया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया,
तो इनफ इज इनफ, आज मैं लड़ाई करके कैसे आपको छोड़ के जाती हूँ. So that is what happens is that when we don't release our emotions, it bursts. So it is always good to either write a journal or write in a piece of paper, burn it, और ऐसे फाड़ के फेंक दो. We also do certain techniques, उसको हम बोलते हैं balloon technique, where we help to release the negative emotions which is there in our life. Now self awareness का जो point मैंने बताया था वो ये है. This is the last slide of me. So आप पहला जो सर्कल है ना, हमेशा ये आप अगर करना शुरू कर दिया आपने, worry will never be there in your life. आपको पता होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ. हम सारे लोग बहुत ज्ञानी हैं, बट ज्ञान का क्या करेंगे अगर हम उसको यूज ही नहीं करते. ठीक है ना. सो जो सर्कल, बड़ा वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है. बड़े वाले सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल, छोटे वाले सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ नो कंट्रोल. मतलब anything, any thoughts which is coming in my mind, I have to put it in a right circle. So say there is some thoughts which is, say suppose कोविड है, पता नहीं अगर मैं मुझे हो गया तो, अब वो किस में आएगा बताओ, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में आएगा, सर्कल ऑफ कंट्रोल में आएगा? सर्कल ऑफ कंट्रोल. नहीं, कोविड No तो आप तो control. घर के अंदर बैठे हो, आपको अगर हो गया तो आप क्या कर लोगे? No control. यू आर नॉट हैविंग दैट कंट्रोल. से समझ लीजिए बहुत बारिश No, हो but रही. it's in. हाँ जी बोलिए. No, you're saying that if हो गया, that is it is in our thoughts. So what I'm saying is, once again I'll rephrase my question. My question is, let's say suppose I am thinking that if COVID will happen to me, you are talking in a way that हाँ thoughts तो मेरे कंट्रोल में है, करेक्ट ना. बट अगर मेरे को हो जाता है तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. तो देन आई विल पुट दैट इन सर्कल ऑफ नो कंट्रोल. सेकंड, मैं और दूसरा एग्जांपल देता हूँ. समझ लीजिए बारिश हो रही है, अब रुकी नहीं रही है, 5 दिन हो गए. अब न्यूज में आ रहा है दैट इट विल लीड टू फ्लड. Where you will put it? Circle of control, circle of no control. That's no control. हाँ, तो अब अगर आपने वो जगह में सर्कल ऑफ कंट्रोल पे डाल दिया, तो then what will happen? You will start giving stress to yourself. Means you are trying to change something which is not in your control. So like say for an example, अगर मुझे कल कैंसर हो गया तो, that is circle of no control. होगा कि नहीं होगा ये मैं कैसे भी बोल सकता, अभी तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना. सो when I am talking about the circle of control or circle of no control, it is something related to my actions, not based on the thoughts. So basically what I'll explain. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्या समझी हूँ, मैं आपको बताती हूँ. So basically our thoughts are in our control. Outside circumstances are not in our control. Correct. So बारिश हो गया, बारिश तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर छतरी लेके जाना मेरे कंट्रोल में है. करेक्ट. बीमार होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोविड हो गया, पर मास्क पहनना और प्रिकॉशंस लेना हमारे कंट्रोल में है. So let's worry about what we can control, and let's leave what is not in our control, because we can't do much about it. Yes. And by worrying, we are causing harm to ourselves. So thank you so much दिव्या जी for sharing your points. But यहाँ पे जो point हमको सीखना है, जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आपको arrows दिख रहे हैं ना, so when you focus on things which is in your control, it will squeeze the inner circle. Okay. हाँ. Will squeeze the inner circle, तो क्या होगा ना, ये जो space है ना ये बढ़ जाएगा. Right, right. So things out of control will affect us less, because most of the things that is in our control, we'll be Correct. doing it much better. लेकिन other way around is also correct. If you are putting more thoughts here, circle of no control, what will happen? It will push outside. It means this circle will become big and the diameter जो ये है ना बीच का gap ये कम होता जाएगा. मतलब कि circle of control will become less and circle of no control will become more. You will drain your energy in thinking what to do. Right, right. तो ये जो सर्कल वैसा ही है. आप अगर कंट्रोल, तो इसीलिए होता कैसा ना, अब जैसे डॉक्टर हैज सेड
that you have chances of developing this particular illness. Now, if I'm thinking, ये मेरे साथ क्यों हो गया, इसको कहते हैं आपका मुझे नहीं होना चाहिए था, अगर ये हो गया तो मेरा फैमिली कैसे चलेगा, अगर ये हो गया तो मैं कैसे कहते हैं आपका सिक्योर करूंगा एवरीवन को, then what I am doing, I am putting my head in circle of no control. Then what will happen, I will feel more of less in control. But when I start thinking that okay, this is the problem, can I do this, can I do this, can I do this, then what will happen, your sphere of circle of control will increase and no control जो है ना yellow वाला part वो छोटा हो जाएगा. So whenever any thoughts which is coming in our mind, we have to put it in a right circle. अगर अंदर वाले में डाल दिया तो जो कंट्रोल है वो भी चला जाएगा. लेकिन अब जैसे कभी होता है ना, से you there is like accident happened, nothing more happened, but you have all been able to come out safely. Now उसमें आप अगर एक दूसरे पे चिल्लाओगे तो फायदा नहीं है, वहां पे काम करो, बिकॉज अगर चिल्लाऊंगा अभी तो रिवर्स तो होने वाला नहीं, वापस से तो मैं पास्ट में नहीं चला जाऊंगा. Right. And many people बहुत कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है ना तो काफी ब्लेम गेम खेलते हैं, काफी अक्यूजेशंस करते हैं, काफी और चीजें बिगाड़ देते हैं बिटरनेस की वजह से. आई मीन मेरे लाइफ में आइसबर्ग क्यों आया, अगर आइसबर्ग होता ही नहीं तो मैं कहता है आपको जाके उसे टकराता ही नहीं, अगर मैं टकराता नहीं तो कहता है आपको पानी अंदर आता ही नहीं. अरे भैया, जो नहीं कर सकते थे उस पे क्यों सोच रहे हो, जो कर सकते हो उस पे सोचो. So like I have a ache in my leg, can it go just like that? No. Then can I learn how to live with it and start working on it, that how I can reduce it rather than shouting on others. Right. मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं. अगर मैं सोचता रहूंगा तो what I am doing, मनी तो ऐसे ऊपर से नहीं आने वाला है. Right. ठीक है, नहीं है. Can I do anything? No. Can I take actions? Yes. Let's focus on actions. Right. So I think you have simplified the entire thing so well. Yes. So that is what we have to do it. And that's all from my end. I think, you explained it so beautifully, Heminder sir. I think it will stay with me. The 3-4 points that I have learned today are so important. And thank you so much for the beautiful session. Satnamji, thank you so much for connecting us to Heminder sir. He did a great job. And each one of you, thank you so much for being part of this session tonight. It was wonderful to get back to each one of you. And yes, take good care, and please, share the link with everyone. We need to have more people benefiting out of it. कितने लोग चिंता के वजह से परेशान रहते हैं. So you all are my brand ambassadors. So I look forward that आप लोग मुझे help करोगे, और कोई है नहीं, आप ही लोगों को help करनी है. So let's spread the message. Thank you so much, everyone.